पंजाब पुलिस ने देखिए अमृतपाल को इस वक्त भगोड़ा घोषित कर दिया है और लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। इस वक्त पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए सुनाते हैं। नहीं गड्डियां एक एंडेवर साडे कोल है जी और एक ईसूजू सवेरे मिली है सानू। हाँ जी सर, जो ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਫਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 7 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ और किते भी कोई इशू नहीं है। और मैं पब्लिक नू यही अपील करूँगा कि इदां ही साथ दिओ। पंजाब 'च हमेशा ही आपसी भाईचारा ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਵਨ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ और ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ और लोग ਸਾਨੂੰ पब्लिक ਸਾਨੂੰ सहयोग कर रही है। सर जो 7 लोग आपने अरेस्ट किए हैं वो क्या आप लोगों की कस्टडी में है? क्योंकि हाँ जी मैं कह रहा जी साडी कस्टडी 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ मैं एक मिनट यार एक इसको हाँ जी नहीं आई अंडरस्टैंड जी बट लेट मी फिनिश दिस। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ पंजाब पुलिस ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ FIR ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ and we have been successful in this। मैंने तो पूरा अब बताइए FIR जो अजनाला इंसिडेंट हुआ था उसमें अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, उसी के रिगार्डिंग ही कल सारा ऑपरेशन चला है। उसमें अमृतपाल भाग गया था और उसके 7 सहयोगी हमने पकड़े हैं। उन 7 जो लोग पकड़े हैं हमने उनसे 6-12 बोर गन्स रिकवर हुई हैं जो कि इलीगल हैं, विदाउट लाइसेंस वो वेपन है। और ये लोग जो कैरी कर रहे थे इनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है जी। और इसके अलावा 193 कार्ट्रिजेज ऑफ .12 बोर गन के 193 कार्ट्रिजेज भी पकड़े हैं। इसके अलावा एक आदमी हरविंदर सिंह जो पकड़ा है उसके पास अपनी 315 बोर का लाइसेंस था, लेकिन वो भी इलीगल हो गया क्योंकि उसने 139 कार्ट्रिजेज ऑफ 315 बोर जो कि इलीगल है वो। और जब हमने उससे पूछा कि ये तूने 139 कार्ट्रिजेस लिए कहाँ से, तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये अमृतपाल ने ही उसे एक गुरबेज नाम का व्यक्ति है उसके ज़रिए उसको दिलाए थे। सो ये सारा कुछ ही इलीगल था, सारी वेपन जो पकड़े गए वो भी इलीगल थे। उसके तहत हमने आर्म्स एक्ट में रात को पर्चा भी दर्ज किया है और अब उसको कोर्ट में भी पेश करेंगे। किसके खिलाफ सर आर्म्स एक्ट का अमृतपाल के खिलाफ और ये जो लोग पकड़े गए हैं इन लोगों के खिलाफ और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उनके खिलाफ होगा। ये रिकवरी जी इत्थे FIR रजिस्टर है, तुहानूं दस्सिया है भी कल ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਲੇ ਇਹੀ ਆ,
मैं ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾइंडली मैं ਤੁਹਾਡੇ लीड क्वेश्चन ਦਾ ਕੋਈ आंसर नहीं कर सकूंगा तो यही चीज़ है। पंजाब के अंदर है इंटेलिजेंस आपका क्या बता रहा है? पंजाब में ही देखिए मैं इस आई कांट आंसर योर लीड क्वेश्चन जी। इसके अमृतपाल को हम पकड़ने में लगे हुए हैं और हम अरेस्ट भी कर लेंगे। थैंक यू। इंटरनेट सेवा में अंकुश खेती हो जाए। तो आप सुन रहे थे पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सतिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि अमृतपाल को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण बात भी कही कि जो भी हथियार बरामद किए गए हैं वो तमाम हथियार अवैध हथियार हैं, बिना लाइसेंस के ये हथियार थे और इसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है अमृतपाल और साथ ही उसके 7 साथियों के खिलाफ। साथ ही पुलिस ने यह भी साफ किया कि फिलहाल शांति कानून व्यवस्था पंजाब में ठीक है, बरकरार है और लोगों के सहयोग से शांति व्यवस्था जो है वो बहाल रखी जाएगी, बरकरार रखी जाएगी। आरोपियों को कोर्ट में पेश करेंगे, यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया। पंजाब में स्थिति शांतिपूर्ण है। साथ ही लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा की। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि अमृतपाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए हैं जिसके अंदर 12 बोर की राइफल्स हैं, जिसके जो करीब 6 राइफल्स बरामद की गई हैं। साथ ही 193 कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही 315 बोर की एक राइफल बरामद की गई है। उसके लिए 139 करीब कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हरपाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास ये लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद जो संख्या थी कारतूसों की उसके चलते ये लाइसेंस भी रद्द हुआ है उसका। और लाइसेंस न होने के कारण ये तमाम जो हथियार थे ये अवैध हथियार थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करीब 1 दर्जन ये 12 बोर की जो राइफलें हैं और साथ ही जो कारतूस हैं वो बरामद किए हैं। ये जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं अमृतपाल और उसके साथियों से। साथ ही अमृतपाल को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान इस समय पंजाब पुलिस चला रही है। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस मामले में सहयोग कर रही हैं। तो पंजाब पुलिस की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि पंजाब पुलिस अदालत में पेश करेगी तमाम आरोपियों को जिनको पकड़ा गया है। साथ ही जो सघन तलाशी अभियान चल रहा है उसमें जल्द कामयाबी मिलने यानी अमृतपाल को जल्द पकड़ लिए जाने का दावा भी पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया है। और अब सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपने सुना पंजाब पुलिस की तरफ से जो तमाम दावे किए गए, जो कुछ कहा गया उसके इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? ये दावा जरूर किया पंजाब पुलिस की तरफ से कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन आपको वहां पर खड़े होके, वहां मौजूद होके क्या कुछ समझ आ रहा है कि आखिर 24 घंटे के बावजूद अमृतपाल बच निकलने में कैसे कामयाब हुआ? क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? देखिए प्रणय, इस मुद्दे पर पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। अभी अमृतसर के एसएसपी सतिंदर सिंह बात कर रहे थे, लेकिन एक बात अहम जो बात उन्होंने बताई है कि 7 लोग पकड़े गए और उनके पास से इलीगल राइफल्स और कार्ट्रिज बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये उनको अमृतपाल की ओर से ही प्रोवाइड किए गए थे। एक अहम बात ये उन्होंने बताई है और अमृतपाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। तो ये जो बात सामने आ रही है वो इस बात का इशारा कर रही है कि किस तरह से पुलिस की स्ट्रेटजी ये है कि अमृतपाल के जो करीबी के लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जाए और उन पर शिकंजा कस करके उसके जरिए कोशिश की जाए कि वो अमृतपाल तक पहुंचे। और हमने ये भी सवाल उनसे पूछा कि हाइड आउट के बारे में आपको क्या जानकारी है, तो उन्होंने उस पर कहा कि उनके पास अभी कोई जानकारी हाइड आउट को लेकर के नहीं है, लेकिन सारा फोकस उनका इसी बात पर है कि जो 7 के लोग हैं और जो इलीगल असलहे लेकर के चल रहे हैं उस नेक्सस को ब्रेक किया जाए, उस फोकस। और देखिए हमारे साथ में सतिंदर सिंह आप मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे। आपने पकड़ा है, 7 लोगों को पकड़ा और काफी इलीगल असलहे बरामद हुए हैं, इलीगल असलहे बरामद, तो उसके बारे में डिटेल दीजिएगा। ये आपके पास पहले से इनपुट था कि ये लोग असलहे लेकर के ट्रैवल करते हैं? देखिए, ये तो आपने मूवीज़ इनकी देखी है, सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं, जहाँ भी ये हो रहा था तो असला तो साथ में था ही। तो कल जब पकड़े गए हैं तो जब ये वेपन सारे रिकवर हुए हैं तो कोई लाइसेंस नहीं है जी वेपन्स का, कोई इनको पता नहीं है कि ये कहाँ से आई हैं, और जो लोग कैरी कर रहे थे उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और 193 के करीब कार्ट्रिजेज हैं, 6-12 बोर गन्स हैं जो टोटली इलीगल हैं। और इसके अलावा और भी, जैसे एक आदमी था जिसके पास अपना लाइसेंस्ड वेपन था, लेकिन वो कार्ट्रिजेज जो इतने ज़्यादा कैरी कर रहा है तो वो कैरी नहीं कर सकता था। अमृतपाल के ही इशारे पे हो रहा था, अमृतपाल ने ही कहा था ये सब लेके चलने के। बिल्कुल, अमृतपाल ने कहा था और जो इनकी इंटेरोगेशन में आया है ये सारा कुछ
वेपन वगैरह ये प्रोक्योर भी अमृतपाल ने करवा के उनको दिया। मोटिव क्या था, क्यों लेके चलते इतना सारा असला? क्या सारा क्योंकि अभी कल का ही है जी, सारा कुछ चल रहा है, अब देखेंगे जी क्या कैसे। आर्म्स एक्ट का केस अमृतपाल के खिलाफ भी दर्ज किया है? हाँ जी बिल्कुल किया, बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो यहाँ से आप घर पे भी हमने देखा, वहाँ भी पुलिस है, घर से वो निकला और आप लोगों को ये पता था संगत में कहाँ जा रहा है, तो फिर ये देखिए मैं अब अपना क्या हमारा ऑपरेशन है क्या इसके बारे में आपको नहीं मैं बताऊंगा, और जितनी चीज़ें हुई हैं एफआईआर रजिस्टर होगी या अजनाला की भी एफआईआर रजिस्टर है, जो रिकवरी हुई है उसके बारे में आपको डिटेल। 7 लोग पकड़े गए, इनसे आपको काफी अहम जानकारियां मिल रही हैं अमृतसर के, अमृतपाल के मूवमेंट, इन सब चीजों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और भी लोगों पर आपकी निगाह है जो उसके साथ में उसके साथ में जो ट्रैवल। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जितने भी होंगे हम सभी को अरेस्ट करेंगे जी। अभिषेक क्या गांव में काफी हमने मूवमेंट देखी है, गांव में इतना ज्यादा पुलिस जो तैनात है। देखिए ये सारा कुछ क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसी की वजह से है, और इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक पब्लिक को भी मैं अपील करूंगा, क्योंकि पब्लिक का हमारे साथ पूरा सहयोग है, और अफवाहों पे मत जाइए। किसी चीज़ की भी आपको शंका जो कोई खबर होती है आप हमसे वेरीफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल जो माहौल है वो शांतिपूर्वक है, पब्लिक हमें पूरा सहयोग। बात की कि अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ऐसी भी सूचना आई है कि सरहद पार से आईएसआई वगैरह भी चाह रहे हैं कि अफवाहें यहाँ पर फैलें, ये उनका तंत्र सक्रिय है। हाँ देखिए, जो भी र्यूमर्स फैलाएगा हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, पीसफुल हैं, और पब्लिक का हमारे साथ पूरा सहयोग है। कवायद कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं, अफवाहें फैलें, ये आपकी इनपुट में आया है? हाँ देखिए ये क्योंकि थोड़ा सा प्रिकॉशनरी भी हम कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की भी आपको कोई भी रूमर पहुंचती है तो आपको उसको वेरीफाई कर लें, और कोई भी चीज़ ये सामने आएगी जो भी गलत रूमर फैलाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। आप घर की तलाशी भी आपने, क्या घर में भी हथियार वगैरह मिले अमृतपाल के घर में? अभी इसके बारे में आपको, क्योंकि हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। में काफी हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, कैमरे देखे, बड़ा टेक्निकली सिक्योर घर है अमृतपाल सिंह का। मैं अभी इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बता सकता। आखिरी बात आप बता दीजिए, जो कि हर कोई जानना चाह रहा है, कि आपको क्या लगता है कि आपका जो नेटवर्क है, जिस तरह से पुलिस हम लगी हुई है, आपके नेटवर्क के दायरे में मूवमेंट हो रहा है अमृतपाल? मतलब आपको लगता है कि आप वो क्रैक? यही एक चीज कहूंगा कि हम उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, ये श्योर है? इसका मतलब आपके पास कुछ इनपुट हैं? मैं आपको इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा जी, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट कर लेंगे, ये पूरे कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं? देखिए क्यों कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कहेंगे, हाँ वक्त बीत रहा है, हमारा ये काम है और हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। आप ये कहते हैं इसका मतलब आपका कुछ इनपुट हैं, तभी आप ये बात। मैं आपको ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? पूछूंगा नहीं आपसे, बस मैं आपका कॉन्फिडेंस की बात। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा सारी पंजाब पुलिस कॉन्फिडेंस में है, सारी पंजाब पुलिस का मॉरल अप है, और हम इसको अरेस्ट करेंगे। उसका जो पूरा गुट है, साथ में प्रधानमंत्री करके एक व्यक्ति है, वो भी उसके साथ में। देखिए मैं अब जो जितना मैंने आपको बताया, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं और कुछ नहीं बताऊँ। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, खुल के बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि वो अरेस्ट जरूर कर लेंगे, और एक अहम बात ये भी उन्होंने कही है कि जो नेटवर्क है अमृतपाल सिंह का, और जिस तरह से ये बताया है कि ये लोग हथियार लेकर के चलते थे, एक पूरी की पूरी हथियार की ट्रेल थी, और जिस तरह से हथियारों की बरामदगी हो रही है, ये बता रही है कि ये कहानी अमृतपाल तक ही सीमित नहीं है। अमृतपाल का जो पूरा नेटवर्क है, उसमें जो हथियारों का फ्लो है, और उसके जरिए क्या मोटिव है आगे, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इन्वेस्टिगेशन में छन करके सामने आ रही है। ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर अमृतपाल के साथ और कौन कौन मिला हुआ है। हालांकि जो लोग अभी पकड़े गए हैं, जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके द्वारा ये जानकारी जरूर पुलिस के माध्यम से हमको मिली है कि वो अमृतपाल के कहने पर ही ये सब कर रहे थे, उन तक हथियार भी अमृतपाल के द्वारा ही पहुंचाए गए, यानी कि जो एक नेटवर्क है उस तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, हर तार तक पहुंचने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, जो हमने बात की है अमृतसर के एसएसपी से, उनकी बात पे आप ध्यान दीजिए। उनका जो इशारा था वो बता रहा है कि अमृतपाल ने पूरा एक नेक्सस बना रखा है, और ये वो नेक्सस है जो कि असलहे लेकर के चलता है, जिनका मैन टू मैन एक पूरा एक तरह जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का एम्पायर उन्होंने डेवलप कर लिया है। और इसके जरिए ही अब अगर अमृतपाल पकड़ में अभी तक नहीं आया है, तो इसकी वजह यही है कि यही नेटवर्क उसको मदद कर रहा है, जिसके पास असले हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास दूसरे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन जो बड़ी बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अरेस्ट कर लेंगे, इस पर भी ध्यान देने वाली बात होगी। और हमारा ये अनुभव ये कहता है कि जब ये पुलिस इस तरह से कहती है कि हम अरेस्ट कर लेंगे, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तो इसका मतलब है कि कुछ इनपुट उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वो पब्लिक नहीं करने चाहिए। इस बात को मैं अप्रिशिएट करते हैं कि वो इनपुट इस समय सामने नहीं आने चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि पुलिस की पकड़ में चीजें दिख रही हैं, जो हमको बातचीत करके लगा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। निश्चित रूप से पंजाब पुलिस के इन तमाम दावों के ऊपर जनता की भी नजर होगी, क्योंकि अमृतपाल अभी तक भगोड़ा है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।
लेकिन अभिषेक उपाध्याय लगातार ऑपरेशन अमृतपाल को कवर कर रहे हैं। वो कल से अमृतपाल के गांव में मौजूद है, जहां अमृतपाल के घर से लेकर गांव की गली गली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। छावनी में तब्दील हो चुके अमृतपाल के गांव से देखिए अभिषेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जुल्लू खेड़ा यानी कि अमृतपाल सिंह के गांव की तस्वीर है। अमृतसर के ठीक बगल का ये गांव, जहां इस समय पंजाब पुलिस का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है। इस गांव में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमको जगह जगह पंजाब पुलिस की मौजूदगी दिखाई पड़ेगी और हम जहां पर हैं वो अमृतपाल सिंह के घर की ओर जाने वाली गली है और इस गली का हमको चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई पड़ रही है और उसकी वजह यह है कि अमृतपाल सिंह फरार है। पंजाब पुलिस तलाश कर रही है। आसपास के जितने भी पिंड हैं, गांव हैं, उन सब में जांच पड़ताल की जा रही है। अमृतपाल सिंह के कई करीबियों को उठा लिया गया है। बॉडीगार्ड्स के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। जो फाइनेंसर हैं उन फाइनेंसर्स पर भी चोट की जा रही है जो कि पैसा फाइनेंस करते थे। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमको इस गांव में जो सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है वो भी बता रहा है कि यहाँ पर बदली हुई तस्वीर क्या है। ये देखिए, ये अमृतपाल सिंह का घर है और अब यहाँ से हम फिर आगे की ओर देखेंगे। राजेश इधर दिखाइएगा तो आपको देखिए फिर पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए, तो इस तरह से इस पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि यहीं से, इसी गांव से मूवमेंट हुआ था। अमृतपाल सिंह यहीं से निकला था जालंधर के लिए, जहां उसे संगत में जाना था और उसके बाद रास्ते में जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो 2 गाड़ियां पकड़ी गई और एक गाड़ी से वो निकल भागा। देखिए, इस गली में भी हमको पुलिस मौजूद नज़र आ रही है। तो पूरी मुस्तैदी के साथ में पुलिस यहाँ पर डटी हुई है। इस पूरे इलाके को एक तरह से हम कहें तो वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और कवायद इस बात की जा रही है, चूँकि यही घर है, परिवार के लोग यहाँ पर हैं, तो अगर ये रूट इस्तेमाल किया जाए, अमृतपाल सिंह बाय द वे या यहाँ आता है या उसके समर्थक या उसके जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर कुछ करने की कवायद करते हैं, तो उसके मद्देनज़र पुलिस पूरी तरह तैयार है, सतर्क है और चौकन्नी नजर आ रही है। तो राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जुल्लू खेड़ा, अमृतसर। और अब ऑपरेशन अमृतपाल से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए कस्टडी में अमृतपाल के 4 समर्थक, अमृतपाल के 4 साथी डिब्रूगढ़ ले जाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस पर निकलकर सामने आ रही है। एनआईए कस्टडी में है इस वक्त अमृतपाल के 4 समर्थक, अमृतपाल के 4 साथी डिब्रूगढ़ ले जाए गए हैं। इनसे लगातार पूछताछ होगी और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ऑपरेशन अमृतपाल पर इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार चप्पे चप्पे पर हर इलाके में पुलिस की तैनाती है और साथ ही किसी भी अफवाह पर ना ध्यान देने की जो अपील है वो लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अमृतपाल को पकड़ लिया जा सके। एक तरफ जहां पर पंजाब पुलिस लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है, एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है, तो तमाम अमृतपाल का सुराग हासिल करने के लिए पुलिस की हर छोटी बड़ी चीज पर पैनी नजर है। लेकिन पैनी नजर अमृतपाल अपने घर के आसपास होने वाली हर हलचल पर भी रखता था। कैसे? देखिए अभिषेक उपाध्याय की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और आपको भी पता लगेगा कि किस तरीके से चौकन्ना था शातिर अमृतपाल। अमृतसर के नज़दीक जुल्लू खेड़ा गांव, जो अमृतपाल सिंह का गांव है, उसमें अमृतपाल सिंह के घर की तस्वीर ये बताती है कि किस तरह का इंतज़ाम अमृतपाल सिंह ने अपने घर पे कर रखा था। आप ये घर देखिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा कोई इकलौता नहीं है। यहाँ पर ऐसे सीसीटीवी कैमरास की भीड़ है। देखिए दूसरी ओर देखिए, वहाँ से भी हमको कैमरे की मौजूदगी साफ दिखाई पड़ रही है। यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी इस घर से हो सकती है कि इस घर के आसपास कौन किसकी मौजूदगी होती, का मूवमेंट होता है। और यहाँ से अब हम पीछे की ओर दिखाएंगे आपको 2 सीसीटीवी कैमरे एक साथ दिखाई पड़ेंगे। राजेश दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पर भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, यानी कि दोनों ओर से मूवमेंट, इधर से आने वाले और उधर से आने वाले दोनों के मूवमेंट की जानकारी यहाँ पर हो सकती है। और ऊपर की ओर देखिए, ये जो पूरी तैयारियां हैं ये बताती हैं कि इस घर को किस तरह से तकनीक के लिहाज से तैयार किया गया है ताकि यहाँ पर रहते हुए पूरी निगरानी की जा सके। और अब हम चलते हैं घर के सामने की ओर, चूँकि घर पे अभी बाहर से खामोशी है लेकिन घर के भीतर काफ़ी हलचल है। ये जो गली है अमृतपाल सिंह के घर की गली, ये गली में मूवमेंट कम दिखाई पड़ रहा है, मगर अहम बात यह है कि जो घर का दरवाज़ा है अमृतपाल सिंह का,
वो दरवाज़ा खुला हुआ है। और देखिए इस दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा दिखाइएगा एक बार आपको, एक बार यहाँ भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दो सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ये घर है, घर के अंदर परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हमको नज़र आ रहे हैं। और ये इसी घर से अमृतपाल सिंह निकला था और इस घर से निकलने के बाद वो जालंधर की ओर गया जहां पर उसे संगत करनी थी, और रास्ते में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद से अमृतपाल सिंह फरार है। लेकिन ये पूरी कवायद ये बता रही है कि आखिर यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, किस तरह का अमृतपाल सिंह का अपना नेटवर्क है। क्योंकि राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जुल्लूखेड़ा गाँव, अमृतसर।